Hello and welcome to our new year, new episode for our podcast 90 plus 3. How are you guys doing in 2022? The year has changed, boys. न्यू ईयर सेम ओल्ड शिट वही चल रहा है नहीं होपिंग टू हैव अ गुड पॉजिटिव ईयर दिस ईयर 2021 तो सबको पता है कितना अच्छा गया है तो देखते हैं I was sleeping the entire day on 1st of January. So मेरी माँ कहती है जो पहले दिन साल के पहले दिन करते हो साल भर करते हो. So I am going to sleep the entire year, I think now. मेरे God bless you with 8 hours of sleep वो भी था ना इंस्टा पे. But let's hope the clubs that we support they don't sleep as much as we sleep. नहीं भाई अपना क्लब तो ज्यादा खतरे में. खतरे में है काफी clubs. So we had missed around pre-Christmas. We had stopped making videos because there was a lot of issues. You guys, some people were traveling, and there was a lot of COVID cases going up in UK. But now we've again settled back to our old chain, and so we have 3 to 4 weeks to cover up. 4 to 5 weeks, in fact. जिसमें काफी कुछ एक्शन हो चुका है. तुम्हारे क्लब का भी हो चुका है, सिटी का हो चुका है, लिवरपूल का हो गया. So let's start this week's Big Six discussion with Liverpool. Let's pick Liverpool as the first team. Liverpool, and we are discussing the team that are picking उसके 5 recent matches ना, मतलब 5 game weeks जो cover नहीं किया हमने. 5 or if there are any boring games we can like skip that, or let's talk about the big games, whichever way you want, or we can talk about the team as whole, how they performed ये Christmas/New Year का भी start जो है वो period में. हाँ तो Liverpool, I think it has a similar story like Chelsea. मतलब थोड़ा सा लिवरपूल का परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुआ है, थोड़े ड्रॉज हुए हैं, डिफिकल्ट फिक्सचर्स भी थे, चेल्सी के साथ था, स्पर्स के साथ था, बट हाँ लेस्टर के साथ भी था, ड्रॉज थोड़े मिले हैं. बट क्रिसमस पीरियड में तो आई विल से दे हैव परफॉर्म्ड एग्जैक्टली लाइक चेल्सी, व्हिच इज थोड़े ड्रॉज, और सिटी इज टेकिंग, मतलब वो लोग अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये लीग भी उनका ही है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो क्रिसमस पीरियड में और क्रंच पीरियड में निकालते हैं विंस, वही टीम इवेंचुअली लीग जीतता है. तो बाकी तो लिवरपूल का भी साला और माने भी निकलने वाले, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि सेकंड थर्ड का रेस में क्या होगा. और मतलब मुझे 3 और रेस तो मतलब आफ्टर दिस पीरियड लग नहीं रहा. इट इज क्लियर टू मी कि लीग कौन लेके भागने वाला है. बट बाकी सब लंगड़े घोड़े, एक ही स्ट्रॉन्ग घोड़ा एक ही है. स्ट्रॉन्ग घोड़ा एक ही है. और वो जो एक्चुअली में लिखा था ना कि पेप हैज मेड प्रीमियर लीग एज बुंडेसलीगा बना दिया 5 साल में, तो मे बी दैट इज ट्रू. और देखते हैं क्या होता है. बट हाँ लिवरपूल ओके, मतलब जैसे चल रहा था वैसा चल रहा है. साला को पता नहीं, साला को अफकॉन जाने के बाद तो और थोड़ा इफेक्ट करेगा ये लोग को. लिवरपूल पेनल्टी मिस कर दिया थोड़ा, वो भी हिल चुका है, लगता है ज्यादा प्रेस हो गया है. मतलब वो उसने मतलब वो है बेस्ट प्लेयर अभी भी है ही, इट डजंट चेंज एनीथिंग, बेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग है ही वो. बट वो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन एक प्लेयर को एक जाके हिट करती ना कि यार मैं तो इतना वाव कर दिया हूँ, एक लेवल तक मैं वाव हूँ, अभी लोग और वाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ से दूं मेरे को, ये मैंने अनलॉक so maybe that has kicked in because thoda, but he's still delivering irrespective. So yeah, Ayush, would like to add anything? Liverpool faced, as I think I'll add to what Surya said, Liverpool faced Spurs. I think Conte was, that is probably after Pep's game and Liverpool versus City, I think Conte gave it back to Liverpool in a way that Liverpool got surprised. In that match, if you see, जितने काउंटर किए स्पर्स ने सब लिवरपूल को हिला रहे थे इधर से इधर. So I think वहां से फिर I think that's how it started affecting Liverpool, because then they lost to Leicester. I don't know how, but they lost. They lost to Leicester. They drew against Chelsea. They could have won the match, but then Chelsea started dominating. After the first goal, I think Chelsea dominated Liverpool. So Liverpool are back to being dominated, which is surprising for me because they were on such a rise, and now they are getting dominated by teams like Spurs and Chelsea, which I didn't imagine ever. So it is not going to be a race which Liverpool. I think yes, next team ना तो City ले ले, क्योंकि it is impossible to talk about Liverpool and Chelsea without talking about City and how good. Yeah. But वही है अभी ये पीरियड में ऑलरेडी क्लॉप अभी वैसे ही विद साला और माने भी थोड़ा अंडर परफॉर्म ही कर रहे थे. नाउ स्पेशली दैट दे आर गॉन, इट विल बी लाइक गुड टू सी कि मतलब क्या कर सकता है वो. मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब गेम जीते, बट
how he brings in the other players because सच 2 साल से यही बंदे खिला रहे और अचानक से अभी 1 महीना तुम्हें मिनामिनो और जोटा और फर्मिनो भी है कि नहीं, वरना ओरिगी, तो मतलब बहुत चेंजेस होंगे, तो मजा आएगा देखने। एंड या वो सिटी का तो है ही। लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी ओनली बिकॉज सिंस वी एवरी सेकंड स्टेटमेंट में सिटी आ ही रहा है हम लोग, मतलब क्योंकि आना जरूरी है जो सिटी, मतलब आई वांटेड टू से कि लिवरपूल एंड चेल्सी आर नॉट परफॉर्मिंग बैड, दे आर परफॉर्मिंग लाइक दे आर सपोज्ड टू परफॉर्म। मतलब थोड़ा क्रिसमस पीरियड में ड्रॉज होते हैं, होना चाहिए, और मतलब 5 गेम्स में से अगर 3 गेम 3 विन्स है 2 ड्रॉज है, या तो फिर 2 विन्स 2 ड्रॉज 1 लॉस है, तो फिर ये नॉर्मल होता है। इट्स जस्ट दैट सिटी इतनी अच्छी है ना, मतलब अभी भी ऐसे क्रंच पीरियड में भी विन्स निकाल रही है। आर्सेनल इतना अच्छा खेलने के बाद भी उनके अगेंस्ट भी विन निकालना, लेस्टर वाला वो क्या बोलते हैं एंटरटेनिंग गेम, लीड्स को पूरी तरह लेना, न्यूकासल को लेना। सिटी मतलब इस टाइम पे आई विल से कि स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छे से काम आता है, बट इट कैन नॉट बी ओनली स्क्वाड डेप्थ, पेप मैनेज भी अच्छे से करता है। एंड लाइक आई सेड, वो ऐसा मैनेजर है जो ही डज नॉट rely on one particular player, मतलब he relies on, मतलब चल I can't say relies on anything, क्योंकि Foden, Bernardo Silva, he still doesn't have a striker. हाँ, he does not have a striker but he can adapt to anything, क्योंकि वो एक सिस्टम टाइप मैनेजर भी है, एंड मतलब he is beyond a system type manager also, क्योंकि ट्यूशेल से भी एक स्टेप आगे रहता है वो हमेशा, तो वो तो अडाप्ट करता ही। और पेप का भाई है ही वो बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड इस वक्त पे। वो डिबेट तो हमेशा रहता है कि भाई वो छोटी टीम ले, बट जो टीम ले रहा है उसमें तो मचा रहा है, तो बोल नहीं सकते कुछ। और भाई दुख होता है यार, फोर्डन नहीं है तो डिब्रोने नहीं है तो फिर बर्नार्डो सिल्वा नहीं है तो कोई और है। स्टर्लिंग भी मतलब ऑन एंड ऑफ भी रहेगा, ऐसा लगता है कि स्टर्लिंग का टाइम हो गया, अभी और चांसेस निकलने वाले और खेलने वाला है, तो डूबने वाला है, फिर भी स्टर्लिंग आके भी गोल्स मार रहा है। ग्रिलिश विलिश तो अभी तक पता भी नहीं ग्रिलिश कुछ कर रहा है अभी कि नहीं इतना, फिर भी ग्रिलिश को जरूरत भी नहीं है अभी, जैसे देख के लग रहा है उसको कुछ ना मौका मिलता है ना कुछ कर पाता है, और खेल के भी क्या ही कर लेगा ऐसा, मतलब हाँ, कुछ लाइमलाइट लाइक प्लेयर्स है भी नहीं। मुझे इनफैक्ट वो अच्छा लगता है। बस यार अब सिटी को अब क्या बोलूं मैं, लिवरपूल जीते चेल्सी जीते उससे अच्छा सिटी जीत जाए, ऐसे बोलते बोलते मालूम पड़ा सिटी भी 20 टाइटल तक पहुंच गई, और फिर पता नहीं क्या बोलेंगे हम लोग। एंड बाकी तो भाई सुपर फॉर्म में भाई, लीड्स को गंदा लिया था इसने, आर्सेनल ने बहुत अच्छा खेला, फिर भी सिटी गॉट अ विन। इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन एनीबॉडी बीटिंग सिटी और एनी सिचुएशन बीटिंग सिटी। बट अभी उनका चेल्सी है, स्पर्स भी है बीच में, नॉर्विच और ब्रेंटफोर्ड भी है, बट आई थिंक लेट्स होप कि वो 2 मैच में थोड़ा एटलीस्ट हिले भी ना फॉर्म, बिकॉज क्या है चेल्सी का कोविड के चलते थोड़े प्लेयर्स आउट थे, अभी इनका लिवरपूल का जाने वाला एफकॉन में, इनके पास ना ये सीजन व्हाट हैज वर्कड फॉर हिम कि उसको स्क्वाड हमेशा रहा है, डिब्रोयना भी रहा तो 2-3 अच्छे मतलब है टू कवर हिम अप, एंड इतना भी डिप्लीट नहीं हुआ उसका स्क्वाड ड्यू टू इंजरीज एंड कोविड कि वो एकदम डीरेल हो जाए, तो दिस हैज वर्कड पेप के लिए लास्ट सीजन, क्योंकि बीच में बहुत उसको इंजरी का इश्यूज हो गया था और फिर वो तो खरीद लेता है वो है, बट ये सीजन तो खरीदने की जरूरत नहीं, और स्क्वाड डेप्थ भी काफी अच्छा है। आयुष The best part, I think the most scary part about them is they flood. When they attack, they flood the opposition with players. तो कभी भी देखेगा इधर से घुसेगा तो कांसेलो निकल रहा ही होता है पीछे से कहीं ना कहीं से. And Cancelo has been, I think, City's best player in this season. The amount of attacks which go through Cancelo, and he delivers. उसने क्या क्या तो गोल मारे, वो right back है. He scores better than strikers. And now he's playing left back also. And now he's playing both, and both he's giving so much. I think they don't need Grealish because he can do both. He can defend and do Grealish's work better than him right now. हाँ, बट पेप के लिए कोई प्लेयर्स नहीं है, कैंसेलो जाएगा तो कोई नया प्लेयर बना देगा पेप, वैसा ही सीन है। जिंचेंको को भी खिलाएगा, when you mention Leicester, जिंचेंको भी खिलाएगा, वो तो एंजेलिनो भी होता ना, तो एंजेलिनो को भी खिला लिया होता उसने, बट जगह सही खिला ले, खिला तो लेता है। When you mention Leicester, Arsenal, Brentford, पेप के अंडर Leicester came back. They were 4-3 or something, but then they went ahead and scored 2. And because again, Brentford also, they won a 1-0 match. It was scrappy. They won. Arsenal, I thought they should lose the match, but then Arsenal went Arsenal and they considered a red card. And थोड़ा बुरा लगा, आर्सेनल का था वो गेम में का, मतलब Arsenal should have won the match, but then they went Arsenal. Xhaka, as you know, gave a penalty because that Xhaka. But तो बनाडो थोड़ा सा डाइव नहीं था, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा he went for it. He got the leverage and मिल गया.
Arsenal should have won, Bernardo but then Gabriel का red card बर्नार्डो मिला को तो कोई कुछ बोलता नहीं है ना, के लिए सुआरेस ने भाई ना बर्नार्डो सबसे भला आदमी है, जैसे मेसी को कोई कुछ बोलता नहीं ना, वैसे बर्नार्डो को कोई कुछ बोलता नहीं है, भले आदमी को कोई कुछ नहीं बर्नार्डो बहुत बोलता बड़ा है। बट हरामी तेरी है, तो he बहुत does it जली for his team. थी। अपनी टीम के लिए करते तो लोग गाली नहीं देते. भले लोग को अच्छा मिल जाता है हमेशा, दे गेट द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिकॉज दे आर भले मिलना लोग। ही चाहिए। बर्नार्डो तो हमेशा से हरामी है यार, उसको तो दिखता है क्लियरली, सही में. नहीं नहीं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में He चल does रहा it for था his ये team, वाला। इसलिए मेरे को समझ में आता है, but he's always been, वो टैकल करेगा, गंदा सा फाउल मांगेगा, ये वो करेगा, but he does it for his team, तो मुझे समझ में आता है, तो why not. वो तो है ही। सिटी यार, मतलब लेट्स सी, लेट्स होप दे ड्रॉप सम पॉइंट्स ताकि थोड़ा टाइटर इंटरेस्टिंग हो। 8-10 पॉइंट का लीड है उनके पास, अगर लिवरपूल जीतती अबे है तो 8 इस पॉइंट पीरियड में नहीं ड्रॉप किया तो But- क्या ड्रॉप करेंगे अबे, तू खुद बोल. इस पीरियड अभी में ड्रॉप नहीं अभी किया. ड्रॉप अभी ड्रॉप मेजरली नहीं होगा अनलेस अभी ड्रॉप कराए तो क्योंकि सराय अभी क्या हो. मास प्लेयर लॉस हो जाए। अभी नहीं, कैसा अभी ड्रॉप. चेजर भी तो है अभी, जो मतलब अभी ट्यूशल के अगेंस्ट होगा सिटी चेल्सी, उसमें ट्यूशल को पता है कि अभी इफ वी हैव टू एटलीस्ट गेट समवेयर नियर देम, आई हैव टू डिफीट हिम। यही एक है तरीका। आई कांट रिलाई ऑन अदर टीम्स, यू नो, मेकिंग श्योर दैट पेप लूजेस। तो Tuchel तो also is suffering from within team problems because Lukaku को देखना, I am सास बहू saying the best decision Ole made in his career was selling Lukaku and Sanchez. Lukaku is just another crybaby. He wants attention, that he wants to be pampered and everything, and he's not getting that under Tuchel, so now he's crying. अरे रेट्रोस्पेक्टिव में तो पता हर नहीं, चेल्सी डिसीजन प्लेयर से तो चेल्सी देख, चेल्सी टीम ही वैसी, तो उन लोगों को चलेगा भी, वो लोग जीत भी जाएंगे कुछ ना कोई ट्रॉफी, क्या पता. कल्चर ही वो है, कब कोई आते कब कोई जाते फर्क नहीं पड़ता। आओ जाओ, They जो play बोलना है बोलो, Carabao, निकलो, I think नया semi-final ऑफिस today, right, रिसाइकल, against Spurs. रिंस रिपीट. हाँ, उनको क्या अभी ट्यूशल भी निकाल देंगे, अपना तो था ही प्रेडिक्शन, थोड़ा ज्यादा चल गया है। 4-5 ड्रॉ एक लॉस और इन द मिक्स ऑफ 10 मैचेस और निकल जाएगा ट्यूशल भी. बट चेल्सी का तो प्रेडिक्टेबल, वो तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ट्यूशल को निकाल ही देंगे वो लोग, कुछ ना कुछ ड्रॉ हुआ तो. बट पेप का मैं प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस पीरियड में भी इतना विंस निकाल लेगा वो, मेरे को लगा थोड़ा तो चेल्सी का ही अपन बात कर रहे तो लेट्स पिक अप चेल्सी ओनली। तो उनका भी थोड़ा मतलब दे ड्रू अगेंस्ट ब्राइटन आल्सो। तुम्हारे वेलबैक ने स्टॉपेज टाइम हेडर मार दिया था, एक्स यूनाइटेड। एंड या लिवरपूल के अगेंस्ट दे कुड हैव, यू नो, won the match, but same can be said for Liverpool also। मतलब वो गेम ऐसा है कि इतना बैक एंड फोर्थ था और इतना ओपन था कि कोई भी जीत सकता है। इट वाज एनीबॉडीज गेम। बट हाँ, ट्यूशल तो वो तो रो ही रहा है, क्लियरली वो तो रो रहा है कि मेरे प्लेयर्स इंजर्ड है, मेरे पास प्लेयर नहीं है, लेफ्ट बैक नहीं है, लेफ्ट बैक चाहिए, कोविड हो रहा है। तो वही चैंपियंस लीग तो मिल गया चलो, बट अभी राव प्रीमियर लीग जो उसका रियल टेस्ट था उसमें वो फेल हुआ है एक तरीके से। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब जीतना ही था उसको, बट हाँ चेल्सी का यार बताओ, चेल्सी कुछ नहीं, मेरे को तो लगता है फुल बैक का जितना रिलायंस था वो लोग का सिस्टम, वो थोड़े टाइम के लिए एक्सपोज हो गया, और मतलब उसके बाद वो रो रहा है, वो तो ठीक है, बट हाँ मतलब फुल बैक्स नहीं है, बट यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन वन। मतलब प्रीमियर लीग में अगर तुम एक सिस्टम पे रिलाई करके जितनी कुछ करो तो तुम ना ही वो ट्यूशल चल भले इतना रिलाई नहीं करता है, बट फिर भी क्लियर हो गया था एक पैटर्न था कि फुल बैक से लोग पूरा बॉम्ब कर रहे फॉरवर्ड, या तो अलोंसो खेल रहा है तो जेम्स खेल रहा है, या तो फिर राइट से एस्पिलिकुएटा, राइट से भी जेम्स ही था। हाँ, तो वो सिस्टम भी मतलब मालूम पड़ गया था लोगों को। सेकंड चीज, लुकाकू के बिना अच्छा तो खेल रही थी फॉर अ व्हाइल, आई विश थोड़ा तो सही था उस चीज में, उतना क्रेडिट देना चाहिए उसको। हमेशा सही होता ब्रो। नहीं ब्रो, हमेशा तो तो चेल्सी क्या बोलूं, उस पे ड्रॉ आने वाला निकाल था। रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने दे फेस्ड वुल्व्स टू बी ऑनेस्ट, और वुल्व्स तो बहुत अच्छा खेल भी रही है, ब्रूनो लाग सही खेल रहा है। एवर्टन को खेला है वो लोग ने, एवर्टन से भी ड्रॉ हुआ है। लिवरपूल के साथ मतलब चेल्सी फैंस वुड बी हैप्पी कि वो लोग ने देखा कि लिवरपूल के सामने उन्होंने 2 गोल्स मारे, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहेगा। पर आई कैन नॉट से कि टुशेल इज नॉट फॉल्टरिंग, क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा हिला हुआ है वो भी, और थोड़ा बहुत ड्रॉज और हुए, तो चेल्सी टुशेल्स जॉब इज इन डेंजर क्लियरली। तो जो अपन पॉइंट बोल रहे कि लुकाकू के बिना अच्छा खेले, ट्रू है वो, बट बिकॉज ही चेंज द सिस्टम। मतलब वो पहले जो अभी लुकाकू के साथ जो खेल रहा था, अब तो वो खेल, और अभी वापस लुकाकू को अगर लाएगा टीम में अगेन, वो टेक्निकली एक 3-5-2 होता है और एक 3-4-3 होता है। अगर 3-4-3 खिलाया ना तो लुकाकू के वो काम का ही नहीं है, क्योंकि अगर वो सोलो स्ट्राइकर खेलेगा बॉल, क्योंकि वो 2 नंबर 10 खिलाएगा, ये माउंट और हैवर्ट्स, तो फायदा ही नहीं। इसलिए वो इंटर में वो वर्क क्यों करता था, क्योंकि अगर ये रुकाता था तो ये भागता था और ये
रोकता था तो ये भागता था. हम्म. So he needs some running off him. तो अगर सिस्टम वापस अभी लुकाकू को, मेरे को तो पता नहीं इनकॉर्पोरेट अभी कैसे देखा करेगा. अपोलॉजी चालू बोला है लुकाकू ने, तो देखते हैं हाँ क्या होता फेक पड़ेगा वो सब. अब्रामोविच बैठा हो गन लेके, चल तू ये बोल. है. इतना ड्रामा करेगा तो पता I नहीं यार, think the एकदम. problem Chelsea is what facing is, which I think one or two other clubs are also facing, because there's no, I'm sensing there's loss of team harmony, and combined with COVID हो रहा है, injury हो रही है, so and they were reliant on the fullbacks, so now the secondary fullbacks are there. You see Hudson-Odoi playing right back sometimes, and he's not relying on Azpilicueta to play right wing back anymore. He plays right centre back only. So there's someone, Pulisic who played right wing back once, and now so this is where probably they are getting affected. Plus interviews like Lukaku and everything, which they start crying. Werner wasn't there, so 3-5-2 mein Lukaku Werner can be very good, which which you were mentioning. So it is a combined thing of some outside thing which Tuchel is facing, and just creating problems for him. Not because he is faltering or anything, because there is some exterior problems which he is facing, and he is not able to cope up with that. Which is faltering also, but matlab, maybe not on the pitch, but how you manage to, that's also a part of how you like पर ये build क्या a team. रोना धोना चालू कर देगा तो फिर कैसे होगा? नहीं, इसको but तो मैं एक player के होता ऊपर तो मैं थोड़ी तो होता है. जैकेट में भेज देता. हाँ, रोना धोना वो 97 मिलियन, negativity. मेरे को 97 मिलियन मिलता, जितने में आया मैं उतने मैं भी बेच देता उसको. इतना ये तो गलत है भाई, मतलब तुम जहाँ लुकाकू वैसे ही मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बेच ही देता उसे. ये तो गलत किया, बट ठीक है, अपॉलॉजी भी करनी पड़ेगी एटलीस्ट. अगर उसको जाना भी है तो 6 महीना तो खेलना ही है ना कहीं अभी Of तुरंत course. तो कोई, तो इसलिए कर दिया उसने बकचोदी अपॉलॉजी. करते हुए. नहीं, that is not right of him. अनप्रोफेशनल है यार, और मैंने लुकाकू से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुकाकू अनप्रोफेशनल कभी नहीं रहा है. नहीं है वो वो, करेक्ट. हमेशा पता नहीं क्या प्रॉब्लम बट हुआ, थोड़ा व्हाट आ गया था hurt एक हो गया. minute. He has been unprofessional when people start blaming him. United, maybe he tweeted a race sprint time of his teams and saying sorry for Shaw. So he has been unprofessional in the past as well. That's why I don't like him since. challenging him ना कि तू सांड है, तू स्लो है, तो बोलेगा Again, कि so मैं तेरे से हाँ तेज हूँ. तो so this is So going against the he club. So stand that up is for himself. नहीं unprofessional. भाई, वो तो अपने आप को डिफेंड करना होगा. ये डिफेंड करना नहीं था, तो हाँ. खुद बाहर आके बोला कि Defend इंटर मिलान के लिए defend खेलना. पूरा public में, and you are undermining your own teammates. That is professional for you. नहीं, अगर ये तू वाला उसको- गलत था, बोल रहा अगर वो तू उसको सांड वाला सही था. टारगेट वो कर भी रहा है और अंडरमाइन वो कर रहा था ना अपने प्लेयर्स को, अपने टीममेट्स को नहीं, publicly. मतलब तू उसको तू अगर टारगेट कर रहा है और उसको, वो डिफेंड कर रहा है, वो व्हाटएवर मींस अपना है. तू उसको मतलब तू उसको अटैक कर रहा है. ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ बाय वो टेकिंग फिर व्हाटएवर भी मींस. दैट ठीक इज है नॉट यार. प्रोफेशनल फॉर मी. He is अगर तू खुद defending बाहर आके himself by बोल रहा है कि undermining his मुझे teammates. इंटर मिलान के लिए खेलना है, चेल्सी चूतिया क्लब है, देन दैट इज अनप्रोफेशनल क्लियरली. वो तो खराब ही है, बट वो वाला तो ठीक है यार. उसको तू Lukaku बोले has been unprofessional since a long time, and I don't like नहीं him. ब्रो, मेरे को नहीं That is लगता. because of काफी that. अच्छा डिसेंट रहा है बंदा. you don't उसने like क्लब him भी because चेंज किए तो फिर सही से किए. यूनाइटेड जाने के बाद अच्छा हो गया, यूनाइटेड में अच्छा नहीं. नहीं, वो यूनाइटेड में अच्छा कर ही नहीं सकता था. वहां जाके अच्छा किया उसने. वो यूनाइटेड भी अभी बात नहीं, है. प्लेयर तो अच्छा ही था वो हमेशा. यूनाइटेड ने भी, हम लोग अडेप्ट नहीं कर पाए, वो भी अडेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए पता नहीं. हम लोग का वर्ड तो ठीक ऐसा रहता है हम लोग 6 साल से एकदम टॉप लेवल क्लब है, जबकि ये प्लेयर्स हम लोग के पास जाके बोल के जाते हैं कि छूतिया क्लब है ये, और एक्चुअली वो ट्रू है क्योंकि हम लोग नहीं है वो लेवल पे अभी. तो ऐसे क्लब्स हम नहीं, players since सब we are clubs talking होते हैं. about adaptation and stuff, let's move on to the fourth team, which is your beloved club Manchester United. Because of adaptation की बात आती है, तो right now it's in that phase. Your club, I can at least I can put it that No. way कि ये context. तो कुछ- मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, फिर तुम लोग एकदम नहीं, गैरी तुम- नेवल और जेमी कैरेगर चालू हो जाओ. जेमी कैरेगर बोला मैंने, कैरेगर, जेमी एडिट भी नहीं हो कैरेगर. रहा है. चलेगा. तो देखो, अभी तो 2-3 चीज हो सकती है. अब मेरे को तो पता नहीं क्या, तो मैं क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर सकता हूँ बिकॉज आई मिस सम मैचेस, आई सॉ सम एंड आई मिस सम मैचेस. तो अभी एक तो जो मुझे देख के और थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ मैं उससे समझ रहा, तो आई दिस कैन बी अ, बोलते ना, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं है ये, मैंने बॉट ओपिनियन है जो मैं पढ़ा है, कि एक तो या तो सिस्टम का प्रॉब्लम है, कि सिस्टम इज नॉट वर्किंग, एंड सेकंड प्लेयर का प्रॉब्लम, वो तो अपन 2 साल से बात कर ही रहे हैं. तो तुम लोग को क्या लगता है कि सिस्टम ठीक है, प्रॉब्लम प्लेयर में या प्लेयर्स में प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम प्लेयर्स आने से टीम चेंज करना पड़ा है, फॉर्मेशन बदलना पड़ा है? इसका ना स्टार्ट आयुष कर, तू कर आयुष, देन आई विल गो टू सुयश, मतलब देन यू कैन कैरी ऑन. I'll just say कि जो पहला मैच था which we played against Palace, that's what he was trying to implement, but after the first half he saw कि players में वो नहीं है करने जैसा, so it will take some sessions. That was he was trying to implement.
The match against Newcastle came too soon because we were impacted by COVID and there were people who were not even in training. So I will not take Newcastle's game into consideration. We played bad. Newcastle are the probably second last team. So we shouldn't be getting dominated by them. But after seeing people who are recovering from COVID, it takes time, and I can understand what COVID has done to players and how they may take time to improve from that. But the problem where I found and what I'm scared about is against Wolves. Wolves were dominating us from the minute one, and that is not what I wanted to see. Because even if you are trying to implement a new system, it takes time, which I will give that to the manager and give that to the players. But the players don't, and which has been the problem which I had since last season. The players don't turn up. कोई भी manager आए, they don't turn up. We don't have a quality midfield. कुछ भी बोल, I think you guys would praise Fred and McTominay a lot. I never did, and I will not, because they are good enough to be squad players, but not good enough to be winners. They don't have a winning mentality. The captain has been relegated twice. I don't think that's the type of captain you should have, because Maguire is not worthy of a captain. He can't be benched, and I would bench, the first person I would bench in this team would be Maguire. So rather than blaming entirely everything on manager, because he's trying to come up with something new, he's trying to bring something new to the field, to the club, it should be blamed on the players as well, because they are not turning up. And it will take time. That is another thing. It will take time if you want to learn something from a new manager, from the new type of playing. It will take time. Suyash? मैं तो भाई क्लियरली बोलूंगा, कोई मैनेजर को टाइम नहीं लगने वाला. He is not going to succeed until he drops Cristiano Ronaldo. मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, और ये मेरा एजेंडा भी नहीं है इस वक्त पे. क्योंकि प्लेयर्स को ना देखना तभी प्रॉब्लम चालू होती है जब हम देखते हैं प्लेयर्स को कि प्लेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है. मगवायर कैप्टन मटेरियल नहीं है, फ्रेड मैकटोमिने कर नहीं पा रहे, लुक शॉ कर नहीं पा रहा, फिर से मोटा हो गया है, वैन बिसाका कुछ सिर्फ डिफेंस आता है, अटैक नहीं आता, रैशफोर्ड कुछ नहीं कर पाता. ये सब प्रॉब्लम्स पहले भी तभी आए लाइफ में जब यूनाइटेड परफॉर्म नहीं करता है. परफॉर्म तब नहीं करता है, और 2.5 साल से टीम अच्छी फ्लूइड अटैक चल रहा था भाई, देखने को मजा आ रहा था. मैं हर मैच, मुझे लिटरली पता है, मैं उठ के देखता था, ओले मैनेजर है और बाप खिलाता था, फ्लूइड अटैक चलता था, ग्रीनवुड गोल्स मार रहा है, रैशफोर्ड गोल्स मार रहा है. चैंपियंस लीग नाइट हो या तो फिर एफए कप का मैच हो या तो फिर प्रीमियर लीग का मैच हो, एवरी मैच वाज वॉचेबल. और अभी रोनाल्डो के आने के बाद सिस्टम इतना चेंज हुआ है ना, वो फ्लूइड अटैक इतना चेंज हुआ है ना, मतलब ही जस्ट इज मेयर प्रेजेंस, लोग उसको सिर्फ पास करने को देखते हैं ना. मुझे इतना इरिटेट होता ना कि मतलब हम लोग उसके सिवाय कितने बेटर थे, मतलब कितने सारे चांसेस क्रिएट करने का था. ब्रूनो का एक टाइम था, तेरे को सब लोग ब्रूनो को ही देख रहे थे. लास्ट ईयर तो पब्लिक बोल रही थी ब्रूनो बेस्ट मिडफील्डर, डी ब्रुयने से बेटर है, ये कंपैरिजन चल रहे थे. लोग 6 महीने में भूल जाते भाई कि क्या फ्लूइड टीम थे हम लोग की, क्या अटैक करा रहे थे हम लोग. एक टाइम का सिटी हम लोग हरा नहीं पा रही थी भाई. सिटी से हम लोग 2 पेप को अवे होम अवे हरा रहे, लिवरपूल को दे रहे हम लोग. इतना फ्लूइड अटैक की पब्लिक डरती थी अपने से. पीएसजी जाके अपन विन निकाल रहे भाई. क्या टीम थी यार. 6 महीने लोग भूल जाते हम लोग कैसे फुटबॉल खेलते थे, और अभी अचानक से लोगों को मगवायर कैप्टन नहीं लग रहा. मगवायर चल फिर भी वो पहले से भी ढीला था, बट मुझे याद है कि लास्ट सीजन कोई कुछ नहीं बोल रहा था भाई. लास्ट सीजन जब सेकंड फिनिश के कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना प्लेयर्स में गलती. लुक शॉ एकदम, लोग बड़ा फिर से प्राइम पे आ गया भाई, मोटा वोटा छोड़, प्राइम पे आ गया. वैन बिसाका इज वर्किंग ऑन हिज अटैकिंग गेम. फ्रेड मैकटोमिने खेल चल, फ्रेड तो फिर भी पासेस मिसप्लेस करता ही था, लोगों को फिर भी उसमें मैं एग्री करता हूं कि डिसेंट स्क्वाड प्लेयर है वो लोग, बट आई नो कि देयर इज अ टाइम एंड प्लेस जब पूरे प्लेयर्स अच्छे से. और तभी तो पहले तो लास्ट ईयर सैंचो भी नहीं था, वरान भी नहीं था. आई विश कि मतलब बिना रोनाल्डो के एक स्क्वाड देखते हम लोग जो ओले करता, सैंचो के साथ वरान के साथ, वो अलग चीज हो जाती है. अभी रागनिक आया भी है, उसको भी पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, तो फिर बहुत बड़ा ईगो है. रुक जा, मुझे बोलने दे, खत्म नहीं होने दे. बट आई कैन क्लियरली सी कितना बड़ा, मतलब इतना बड़ा वो है ना. और मतलब ये प्रूव करना ही बहुत टफ है, क्योंकि भाई रोनाल्डो को देख के लोग बोलेंगे ही स्कोरिंग हिज गोल्स, बाकी टीम कुछ नहीं कर रही है. एक्चुअली में फैक्ट देखिए तो पेपर में लोग यही बोलेंगे, ऑन पेपर यही आता है, रोनाल्डो के 30 गोल आएंगे सीजन के. इंडिविजुअली 30-40 गोल मारेगा, लेकिन एज अ टीम कितना गंदा इंपैक्ट करता है टीम का ना, मुझे दिख गया है. अब मैं यूवेंटस के गेम्स जाके देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे को. आई कैन सी क्लियरली व्हाट इज इंपैक्टिंग माय टीम. एंड और रोनाल्डो नहीं, कवानी भी टारगेट मैन है मतलब, लेकिन वो कितना सेल्फलेस प्लेयर है. कवानी को तो किसी की भी टीम में खिलाएगा ना, वो लास्ट सीजन भी देखा हम लोग ने, किसी के भी टीम में खिलाया, कहाँ भी कोई भी पोजीशन में खिलाएगा, वो अडेप्ट करेगा. रोनाल्डो का ईगो इतना है ना, मतलब उसका प्रेजेंस भी इतना है ना, क्या पता वो जानबूझ के करता भी ना, उसका प्रेजेंस भी इतना है ना कि पब्लिक उसको ऑटोमेटिकली पास करने की कोशिश करेगी भाई. और वो कितना गंदा खेलता है यार, मतलब फुटबॉल तो मतलब मेजर पीटर क्राउच जैसा खेलता है यार. वो अभी खड़ा रहता है खाली यार, मतलब ट्रैक बैक भी नहीं कर रहा है, डिफेंडिंग विद 10 men. प्रेसिंग हैपेंस फ्रॉम द फ्रंट, द फर्स्ट पर्सन जो स्ट्राइकर रहता है वो प्रेस करता है. अभी तो मैं देख नो होल्ड्स बार्ड हूं. पहले मैं फिर भी ऐसा था कि मे बी रोनाल्डो के साथ अडैप्ट कर ले तो बेटर है, मतलब विन विन सिचुएशन है. इफ ही अडैप्ट्स विद रोनाल्डो
then it is a win-win situation. And I think रोनाल्डो एंड कवानी को खिलाने का वही पॉइंट था कि रोनाल्डो के स्लैक के लिए ना कवानी पूरा कवर करता है, लेकिन वुल्स के सामने वो भी काम नहीं किया क्योंकि कवानी जैसा सेल्फलेस प्लेयर भी इस बंदे को नहीं जगा पा रहा है भाई. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, he's taking up a space and he's taking up a space so big कि मतलब बाकी players don't even try playing like how they used to. ब्रूनो बेंच होने लग गया, 4-2-2-2 खिला रहे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. I can guarantee yes, जब तक रोनाल्डो खेलेगा ना अपन कुछ नहीं जीत रहे, डिक्लाइन भी हो रहा है, and it will never be proved. रोनाल्डो छोड़ के भी जाएगा ना तो लोग बोलेंगे कि रोनाल्डो was at the top level, these players didn't turn up to Ronaldo's level. रोनाल्डो left the club scoring 40 goals. उसके रिकॉर्ड पे क्या है? यूवेंटस में क्या रिकॉर्ड में है? 30-40 goals. यहाँ पे क्या रिकॉर्ड में आएगा? 30-40 goals. रोनाल्डो is scoring his goals, he is moving on. The teams are suffering. यूवेंटस भाई 7 सीरिया जीता था, 2 यूसीएल जीता था बैक टू बैक. अभी क्या शैम्बल्स में देख वो. मेरे को तो लगता है भाई अपना ही कारमा हो रहा है अपने को, जो हम लोग 2.5 साल में इतना पंप अप हो जाते हैं ना ओले के लिए, उसके बाद अपना ही प्लेयर आके अपने को डुबाएगा और वापस 2 साल अपन भाई ट्रांजिशन. बुरा वक्त चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ कारमा हो गया अपने पास से आ जाता है. कुछ भी करने की कोशिश करो, 2 स्टेप आगे लो, 3 स्टेप पीछे हो जाता है. और मैं तो भाई नो होल्ड्स बार्ड हूं, मैं एकदम क्लियर हूं, मैं एकदम दिमाग में क्लियर हूं, दिखता है मेरे को फुटबॉल क्या चल रहा है. वो साला जगह खा रहा है बीच में से, बाकी कोई अटैक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है. मतलब नोबडी इज इवन ट्राइंग. ग्रीनवुड वैसा प्लेयर नहीं था, रैशफोर्ड बैठने लायक प्लेयर नहीं था, सांचो वैसा प्लेयर है भी नहीं. इफ दिस वाज अ फ्लूइड टीम ना विदाउट रोनाल्डो, आई वुड लव टू सी दिस फुटबॉल. 6 महीने पहले मेरे को याद है यार, हम लोग 6 महीने पहले क्या लास्ट 2.5 years वी हैव बीन प्लेइंग फ्लूइड अटैक. मजा आता था देखने को भाई, सब कुछ हो रहा है, ब्रूनो भी आवाज आ रहा है, कॉर्नर्स ले रहा है, हर जगह से गोल जा रहे हैं अपने. हाँ कंसीड तो पहले भी कर ही रहते हम लोग, वो तो डिफेंसिव लाइबिलिटीज तो थी. और सच बोलूंगा मैं, मैग्वायर मैकटोमिने है स्क्वाड टाइप प्लेयर्स, बट ब्रो इन अ वर्किंग टीम, इन अ फ्लूइड टीम लोग इतना मैटर नहीं करते थे ये सब चीजें. सेंटर मिड, डिफेंसिव मिड तो अभी भी हम लोग खरीदने की जरूरत है, बट इट वोंट अफेक्ट क्योंकि फ्लूइड टीम खिलानी है ना. रागनिक को सच में प्रेसिंग फुटबॉल खिलाना है ना, बिठाना पड़ेगा भाई, रोनाल्डो को बिठाना पड़ेगा. जब तक वो छोड़ेगा नहीं क्लब, कुछ नहीं होने वाला है, मैं सच बोल रहा हूँ. क्योंकि मैंने एक चीज, मेरा होप था कि कवानी के साथ खिलाएंगे तो थोड़ा उसका स्लैक कवर हो जाएगा, क्योंकि कवानी सच में ऐसा प्लेयर है भाई, वो किसी का भी स्लैक कवर कर सकता है. ही इज लाइक पुराना रूनी है और उससे बेटर करता है वो. बट अभी तो भाई काफी सिनिकल हो गया हूँ मैं, मेरे को सही भी नहीं लग रहा है देख के उतना फुटबॉल हम लोग का. इट्स बिकम वन डिमेंशनल ब्रो. सेम चीजें कर भी रहे हैं हम लोग, उसी को पास करने का देख रहे हैं, और पहले ऐसा नहीं था. मतलब 2.5 साल का पूरा मेहनत रुइन हो चुका है आई फील. आज तेरे को क्वेश्चन करना है, मेरे को एक दो जो है वो मैं बोलूं क्योंकि मेरा बहुत पीछे गया क्वेश्चन. This I don't even buy to this agenda. I will never buy because the only thing which Ronaldo brings is lack of ambition. लास्ट सीजन का क्या बोल रहे थे, फुटबॉल देखने में अच्छा लगता है, 12 ड्रॉ है अपने लास्ट सीजन पे, उसमें से आधे ज्यादा होम मैचेस पे. अगर ये चाहिए तो फिर 12 ड्रॉ बोल, तू 8th फिनिश कर, तू खुद बोल तुझे क्या चाहिए. 12 ड्रॉ 8 फिनिश भाई. 12 ड्रॉ लास्ट सीजन इसलिए थे क्योंकि चेल्सी लिवरपूल थे ही नहीं. 12 ड्रॉ इस सीजन लाएगा तो टॉप 4 नहीं आएगा. ठीक है, ये देख रहा है. ठीक है, ये साल 7th फिनिश करेंगे यश, इसको 12 ड्रॉ नहीं चाहिए, 7th फिनिश चाहिए, तो लेट्स डू इट. टॉप 4 आ जाएगी. एंड द सेकंड थिंग इज टॉप 4 आएगी, गारंटी दे रहा है तू, इसी टीम पे दे रहा है. आई विल गारंटी नहीं आ रही है, गारंटी दे रहा हूं मैं तेरे को. I don't know what matches Suarez is talking about because I don't know what he sees. रोनाल्डो इवन बुल्स के अगेंस्ट में बोलता हूँ, बुल्स के अगेंस्ट तू जाके सारे रिकॉर्डिंग सब कुछ देख, सब कुछ जाके पूरा मैच मैंने हाइलाइट्स भी देखा है, मैंने पूरे कमेंट्री सब कुछ पढ़ा जाके वापस से. रोनाल्डो वाज द ओनली प्लेयर जो वहां पे उसमें विंग से विद लेके आ रहा था. वी हैड नो विद इन दैट मैच. वो अपना पोजीशन छोड़ के कवानी के लिए वो लेफ्ट विंग जाके वहां पे गायब हो रहा है. प्लीज भाई प्लीज वो मैच को छोड़ दे, क्योंकि वो मैच का ही मेरे को क्वेश्चन अपना पोजीशन छोड़ के सब बकचोदी देना ही मत. इतना सेल्फिश प्लेयर है. 4-2-2-2 वर्क ही नहीं कर रहा था मेरा एक्चुअली, वही क्वेश्चन था. 4-2-2-2 वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज़ उन लोगों ने 3 सेंटर बैक खड़े, वो कवानी और रोनाल्डो को बार-बार बाजू से पास करके समेडो पूरा फ्री हो रहा था, और ये दोनों को इन्वर्टेड खिला रहा था, तो ये तो जम ही नहीं रहा है. और वही है क्वेश्चन कि अभी लास्ट सीजन तक अपना ब्रूनो ही था मेन प्लेयर टीम का. अब पूरा वापस जब पूरा रीएडजस्ट हुआ है ना, उसका भी गेम डिप हुआ है, तो एक तरीके से पूरा स्क्वाड अफेक्ट हुआ है. अब वो वापस वो लेवल पे कब आएगा और कैसे आएगा वो तो नोबडी नोस, बट एक वो पॉइंट है, एक जिस अगर मेरे को सम अप करना है तो इवन ब्रूनो इज नॉट इस लेवल और क्लब में तब आएगा वापस वो टाइम. नहीं ऑल्सो अपन ने पिछले लास्ट जब अपन डिस्कस कर रहे थे कि हमें मतलब क्या चाहिए तुम्हें, तो तुम लोग ने वही बोला था एक राइट विंग बैक, एक डीएम और एक सेंटर बैक. तो वरान मिल गया था, सैंचो भी मिल गया था, तुम लोग बोल रहे थे ग्रीनवुड स्ट्राइकर खिलाएंगे, तो वो भी पूरा प्लानिंग हिल गया ना एक तरीके से, कि जिसको जो सोचा था, तो अब वो ग्रीनवुड भी रूठा है, मार्शल को छोड़ना, और टीम कवानी डिफरेंसेस, कवानी 36 है, रैशफोर्ड का कॉन्फिडेंस लो है, सैंचो का भी थोड़ा लो है, तो थोड़ा टीम को थोड़ा लगेगा टाइम. एज अ टीम गया भाई, इतना बनाया 2.5 साल में ओले ने,
गया पूरा एज अ टीम। और अभी लोग फिर से वही बोलेंगे, यश चालू हो गया ट्विटर पे, ट्विटर तो फुल सोल्ड है कि प्लेयर्स में प्रॉब्लम है, प्लेयर्स में प्रॉब्लम है, चालू हो गया वो झंडा वो भी लोगों है, का। नहीं दोनों बट है। नहीं, वो प्लेयर्स में नहीं है ही यश, वो प्रॉब्लम नहीं है। है। मैं तेरे को बोलता हूँ प्लेयर्स में प्रॉब्लम है बोलना तब चालू होता है जब एज ए टीम खेलना बंद कर देते हैं। एज ए टीम खेलना कब बंद की, कौन आया उसके बाद? रोनाल्डो आया, एक प्लेन पे बैठ के वो आ गया, उसके बाद सिस्टम चेंज कर रहे हैं उसके अराउंड खिलाने के लिए। भाई बिठाओ उसको यार। उसके पहले 2.5 साल क्या खेल रहे थे अपन, इंप्रूव कर रहे थे, सेकंड आए थे, सब लोग ने बोला था कि ये साल जीतने वाले हम लोग। किधर गया वो सब? वो भी फ्लूइड खेल आयुष, रहे ये थे तो बे, और अभी फ्लूइड खेलने का यश कोई चांस ही नहीं। तू मुझे खुद मेरे आंख में देख के बोल, फ्लूइड खेलने का एक भी चांस है? तेरे को लगता है फ्लूइड अटैक खेल सकते हैं हम लोग? इवन नहीं अगर पर बेस्ट केस सिनेरियो भी ये होगा कि रोनाल्डो से हम लोग को मैक्सिमम निकलवाना है, व्हिच इज अगेन 60 गोल्स फ्रॉम रोनाल्डो एंड द टीम डूइंग नथिंग, एंड द डे ही लीव्स द टीम इज इन शैम्बल्स अगेन। तो मैं तेरे को ऐसे भी नहीं बोला कि मैं ब्लाइंड पॉजिटिविटी या ब्लाइंड फेथ देख के तेरे को बोल रहा हूँ कि ऐसा होने वाला। आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा। टॉप 4 भी फिनिश नहीं कर रहे हम लोग, मैं 100 गारंटी बोल रहा हूँ तेरे को। ऐसी टीम जो फोकस्ड है एक बंदे पे, और ये मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ फुटबॉल है भाई। तू देखेगा ना आजकल टारगेट मैन नहीं चल रहे फुटबॉल में। तो कोई भी अच्छी टीम देख, वो लोग फ्लूइड खेलने को रेडी है इस वक्त पे। टारगेट मैन चलता नहीं है अभी। मतलब चलाने के लिए भी उसको, जैसे ट्यूशन ने बोला, ट्यूशन सिस्टम चेंज करता लुकाकू के साथ खिलाने में। लुकाकू इज काइंड ऑफ अ टारगेट मैन, बट रोनाल्डो जैसा ईगो और वो, मतलब आई डोंट नो ब्रो, मुझे नहीं पसंद आता है देखने को कि मतलब मेरी टीम इतना बिल्ड किया था। होगा, बट एक तेरा पॉइंट तो सही है, बट इसका भी पॉइंट सही है कि प्लेयर्स उतने वो नहीं है कि या तो उसके साथ खेल पाए या उसको उससे भी अडेप्ट कर पाए। तो वो भी चाहे चलो उसके हम आने लोग से कुछ और बना सिस्टम रहे पूरा थे ना बे, 2.5 साल कुछ और बना रहे थे हम लोग। उनको इंस्ट्रक्शंस कुछ और मिला, वो लोग किसी और मेंटालिटी से बड़े हुए, वो लोग कुछ और फ्लूइड सिस्टम खेलने की कोशिश कर रहे। सबको चांसेस मिल रहे। ग्रीनवुड शूट ऑन साइड भाई, जहां पे चांस मिल रहा है गोल मार रहा है। ब्रूनो जहां से प्रोवाइड कर रहा है गोल मार रहा है। ब्रूनो प्ले मेकर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रूनो ही सारे गोल्स मार रहा है, ही वाज प्रोवाइडिंग। समझ रहा है? और अभी वो एक फोकल पॉइंट रोनाल्डो है ना, तो पीपल जस्ट लुक टू पास टू हिम एंड ही डज नॉट डू वेल। यस, वो मतलब ही डज नॉट डू वेल सीरियसली। वो कितने ज्यादा चांसेस मिस करता है, कितने गंदा खेलता है यार वो। मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। बॉल पे आता है तो मैं सोचता हूँ क्या कर रहा है यार ये आदमी। मतलब पहले कैसा था, ये इतना स्किलफुल प्लेयर था, अभी क्या कर रहे हैं ये। मतलब मेरे को नहीं नहीं समझ में आता। और मतलब मुझे एक बात ये भी समझती कि इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रूव व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि कोई मुझे फैक्चुअली प्रूव नहीं कर पाएगा। इट इज जस्ट समथिंग दैट यू कैन, जब तुझे दिखेगा ना तो मुझे लगता है कि मैं धुंधलापन हट जाएगा। क्योंकि जब रोनाल्डो आया था तो मैं भी ऐसे था भाई, रोनाल्डो वापस आ गया, वापस आ गया, आई वाज हैप्पी। बट सीइंग व्हाट ही डज टू अ टीम दैट वाज बिल्डिंग, अ यंग टीम दैट वाज बिल्डिंग, सीइंग दैट इज सो बैड। मतलब मैं देख के सोचता हूँ यार, एक टीम, यंग टीम बढ़ रही थी, मतलब जो एक किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं थे अपन, एक सिस्टम्स टाइप। मतलब ठीक है ज्यादा टैक्टिक्स नहीं थे ओले के पास, लेकिन सब लोग चिप इन कर रहे थे गोल्स के साथ। वी वर अ टीम एंड नाउ वी आर नॉट, सडनली वी आर नॉट। सब लोग डिवाइडेड फील करते हैं, मेरे को तो अब ऐसा लगता है। और लोगों ने पिकआउट करना चालू कर दिया। शॉ मोटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मगवायर कैप्टन नहीं है, वरान क्या कर रहा है, सड़ रहा है, सबका चालू हो गया वो। अगेन द एंटायर फैन बेस इज अगेंस्ट ईच ऑफ द इंडिविजुअल प्लेयर्स एक्सेप्ट द वन हु इज स्कोरिंग, हु इज रोनाल्डो। 30 गोल तो मारेगा वो, तो यू कैन नॉट ब्लेम हिम। सिंपल एज दैट ब्रो। इट्स वेरी बैड, मतलब वेरी हर्टफुल टू सी। मतलब मेरी टीम ऐसे बिल्ड हो रही थी एंड देन एक प्लेयर की वजह से पूरा चेंज करना पड़ रहा है भाई। तो आयुष बोलो अभी, मतलब पर एक पॉइंट तो मानना पड़ेगा ना कि अगर वो वहां से निकल के सिटी आने का नहीं अगर सोचता तो तुम लोग के प्लान्स में ही नहीं था वो। ये तो सच बात। तो वर्ल्ड बस क्लास प्लेयर ऑप्शन देगा तो कोई भी क्लब लेगा। एंड मैं इस 100%। कॉन्वर्सेशन में आना ही नहीं चाहता पेप बिकॉज लेगा उसको, दिस इज कभी नहीं समथिंग लेंगे। व्हिच इज नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग, सो दिस इज इट। इफ यू हैव एनीथिंग टू अदर देन टू डिस्कस then I am okay with it, but this is something which I am not even putting my foot into. पेप ओके और क्लॉप सो लेंगे नहीं यश। पेप क्लॉप जिसमें भी दिमाग है ना, जो मैनेजर्स में दिमाग है, वो लोग ऐसे ईगो को लेंगे नहीं जिसको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पेप वुड हैव डिक्लाइंड ज़्लाटान आल्सो, क्योंकि इतना बड़ा ईगो है। तो फिर मैं समझ गया हूं अभी मैं क्लियरली। अब समझाइए मेरे को लाइफ में। ठीक है चलो, लेट्स पुट दिस पिक असाइड। एक लास्ट फाइनल, मतलब रैग्निक ही तुमको लगता है ना अभी 6 मंथ का ही उसका टेन्योर है, उसके बाद कुछ डायरेक्ट एरियल है व्हाटएवर पोजीशन ही हैज। सो नाउ इफ ही हैज टू प्लान फॉरवर्ड, मतलब उसको क्या करना चाहिए for this season and obviously for next whatever he has to plan also. So then we can move to the other team. Drop Ronaldo, I'll just say that. ठीक है, तेरा आंसर Seriously, क्लियर है। drop Ronaldo and play 4-2-2. Drop Ronaldo but play 4-2-2-2 and then see क्या होता है। देख कितना फ्लूइड खेलता है। I think he should try to build squad harmony before. And Bruno is not someone who can play in a 4-2-2, I feel, because he's going to wings
He's going to there. He's going to. He's not. He's someone who is capable of a free roaming midfielder like for in a 4-2-3-1. He can play easily there, and he'll do wonderfully well. So we have to So change the so maybe. the formation, I think, may not be suited to what the players he has. And I think because of the formation, the confusion which Rashford has, sometimes he plays as a striker, sometimes he plays as winger. So the confusion is creating a dip of form in Rashford's mind. The confusion is being created in the dip for Bruno's also, because now he has to do both the things which he was supposed not to do because he had a player left to him. The confusion because this is a new formation and probably they are not able to suit to that formation. That is why it is affecting their form. Rashford, because he was a winger, now he has to play striker also. And winger striker mein farak hota hai. You have to change a lot of things which Rashford is not able to adapt to right now. उसका तो पहले से काफी बेचारे को चेंज किया, कभी लाइफ, कभी रेड, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी सेंटर से. हाँ, तो तो that is the problem which Rashford is facing because he has to play in two positions. Greenwood को भी वो बोलता है 9.5 है, तो कभी स्ट्राइकर खेलता है, कभी वो विंगर खेलता है. So this is affecting their form, which is because there's no clear idea what they have to do, because you can't expect a number 10 to be a striker and a striker to be number 10 and switch between two depending on the opposition and the match. That is why probably they are getting confused in what instructions are being given on. Plus, I don't find a midfield of two CDMs holding midfielders because then you are dead there. You are just expecting your front four to do everything and for the creative space, which I had a problem last season with as well. And I have a problem again this year. You can't have two holding midfielders because he wants to play that way. Higher he up wants to play that way. तो But वो formation में बैठेगा. वो 4-2-2 की वजह से खिलाना चाहता है. He wants to have two holding midfielders because वो 4 से वो सिर्फ प्रेस एक्सपेक्ट करता है. तो बॉल छूटेगा तो ये दोनों कवर करेंगे. That is where. But if you want to win, two holding midfielders won't give you because you kuch bhi de jaake. They are facing is lack of clear instructions, and the only player which I think is playing better in this formation is Sancho because he is expected to play as a right number 10 and he is expected to play that only. He is playing well there. Sancho has been playing the best out of that entire lot because he doesn't have to play as a number 10. Number 9, go and play as a striker. He doesn't have to do that. That's why he's playing and he knows his position well. So this is I think the lack of clarity in players' mind is what is affecting right now, which I think वो लेके आया है, वो क्या psychology expert लेके आया है, क्या क्या लेके आया है वो सब. So which I think will help, or my suggestion would be he has to change his formation. He can't play this formation this season unless he buys players who plays this formation or give these players as a training जो season के start में होता है, middle season नहीं होता है कि you have to just come in and start expecting people to turn up and go scores bangers in this change in formation. नहीं होता है boss, इतना easy नहीं होता है. Correct. So now if he implements whatever he has in his mind and everything, but so would you want him to continue? Because अभी technically सही है कि उसको time नहीं मिला and he's not able to implement whatever he has in his mind. But suppose अभी 6 month के down अभी like from this January period थोड़ा improvement आया and he's steadied the ship and stuff. तो would you want to see him only continue या वो वापस जो जिसको किसी और को लाने वाले? Because then again the same you go page back to square one हो जाएगा कि वापस नया manager है. I think they what the board has, they would have someone, मतलब 2-3 ऑप्शन ऐसे चेकलिस्ट में डाल के रखे होंगे उन्होंने रिप्लेस करने को. हाँ, जेसी मार्च तो नहीं, वो तो सैक हो गया था अभी डॉर्टमुंड से सैक हुआ है ना कहीं से तो. So I don't think he'll जो इसके सेम इसके टाइप के हो या तो इसके टाइप के अगर his opinion is there, हाँ उसके टाइप के होंगे. And I think the board would be having 4-5 managers का checklist which they may be looking or maybe continuing with Ragnick as well. But I don't think they'll make a decision right now because no, not obviously after 6 months season end पे ही होगा जो भी होगा. And I'm also not sure if I want to comment if I want to I want him to continue or someone else because I don't think it's the time to comment on whether who is going to come or because we are in a phase we are jumping ships, and while we are jumping ships it's just about not losing the ship and falling down and dying. It's just jumping ship. So I think that should be the main criteria. But last whenever we had discussed के तुम्हारा ये fixture list है next 9 to 10 games का, इसमें से एक भी हारना या draw नहीं होना चाहिए. तो अपना एक draw और एक loss हो चुका है. एक draw एक loss हो गया है तो सीध वही है ना, 2 लोग मर गए jumping ship में. एक घायल है और एक मर गया, ऐसा है. ठीक है, चलेगा. So I think that was more or less of Manchester United.
Let's talk about Arteta because thoda similarities we can draw about how he's built a team, how he's got his players, how he has implemented his system, and how he's challenging the likes of Pep. मतलब निकाल लेना चाहिए था वो मैच या whatever. Even the fight that he showed in that match was in itself कि थोड़ा मतलब you can see where he's trying to take the team. So let's talk about Arsenal and then we can wrap up post for. हाँ, आर्सेनल का तो ब्रो अभी मेरे को लगता है जो उसने मोमेंटम बिल्ड किया सिटी के साथ परफॉर्मेंस डाल के लिवरपूल कैराबाओ कप में निकाल देगा, मुझे तो पूरा भरोसा है लिवरपूल को निकाल लेगा वो कैराबाओ कप से. एंड आर्टेटा ब्रो इज जस्ट रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ द सीड्स दैट ही हिमसेल्फ वाज सोइंग लास्ट ईयर. जब उसको इतना स्टिक मिल रहा था फैंस से कि क्या कर रहा है, क्या फुटबॉल खिला रहा है, डिफेंसिवली सॉलिड करने के चक्कर में भी कंसीड कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है. बट अभी सबको दिख रहा है उसके परफॉर्मेंसेस, मतलब उसने क्या करना चाह रहा था पहले, डिफेंसिवली सॉलिडिटी ला रहा था. और उसके साइनिंग्स भी, बेन वाइट को भी स्टार्टिंग में लोग गालियां दे रहे थे, बट अभी वो भी दिख रहा है कि अच्छा खेल रहा है. साका बाप खेल रहा है, स्मिथ रो अच्छा खेल रहा है, ओडेगार्ड इज अ गुड साइनिंग, मार्टिनेली वापस आ गया है, ओबामेयांग भी खेल रहा है, लाकाजेट प्लेज लाइक द प्राइमरी स्ट्राइकर. तो भाई ऑल गुड फॉर आर्सेनल. एंड मेरे को तो लगता है वो लोग ही फोर्थ फिनिश करने वाले. इनफैक्ट मेरे को लगता है टेबल अभी जो है, आई थिंक सिटी फर्स्ट है, चेल्सी और लिवरपूल में से सेकंड थर्ड कोई तो है, एंड आर्सेनल फोर्थ है. आई थिंक टेबल एंड तक वही रहने वाला है क्योंकि कॉन्टे इट्स टू सून फॉर हिम, फिफ्थ आएगा, वेस्ट हैम सिक्स्थ आएगी, यूनाइटेड सेवेंथ आएगी. मुझे लगता है टेबल वही रहने वाला है. एंड आर्सेनल तो क्या बोलूं ब्रो, बाप खेल ही रहे हैं वो लोग. आई एम काइंड ऑफ जेलस बिकॉज आई सॉ ओले बीइंग इन दैट पोजीशन ऑफ लाइक रीपिंग रिवॉर्ड्स ऑफ हिज ओन. और उसका रिवॉर्ड अल्टीमेटली होने वाला था कि इस साल प्रीमियर लीग के लिए चैलेंज कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं हुआ. आर्टेटा को स्टेबिलिटी मिली एंड इन अ वे मतलब स्टार साइनिंग जो अट्रैक्ट नहीं कर पाते तो उनके फेवर में काम कर रहा है कि मतलब स्टार आके कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे. एंड ही सीम्स टू हैव लाइक अ गुड होल्ड ऑफ हिज टीम, of how he communicates with the club, with the board, and how he conducts himself in terms of interviews. तो बहुत सॉलिड लगता है. आर्टेटा को हमेशा देख के ऐसा लगता है कि बहुत सॉलिड जा रहा है बंदा, क्लब भी बहुत अच्छी तरह डायरेक्शन में लेके जा रहा है. बट देन अगेन इट इज आर्सेनल, मतलब नॉट टू गेट योर मतलब बहुत जल्दी होप्स हाई भी नहीं कर देने का. बट इट लुक्स ऑल पॉजिटिव राइट नाउ, तो कैन नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट देम. तो रियली सॉलिड एंड रियली गुड. लेट्स सी. Ayush. I think Arteta, what he's trying to implement, that he was doing the same things. Even the best part about what his team management is, they lose against big teams. They do. They lost against United, they lost against Liverpool, they lost Chelsea, they lost City. But I think that's what he does after that. He tells his team, okay, done, fuck off. New match, and the new match he goes and plays again and once against the smaller teams. And he's creeping up the table by winning all those matches which they are supposed to win. He would have chalked out that these matches, if right now, if I'm not challenging for the title, he would be knowing that we are not title challengers. These are the matches which, if we don't score, doesn't matter. We have to fight. If we win, perfect. If we don't score, doesn't matter. These are the games which we need to win, and they are winning. Best part, Aubameyang, he was shit. He was playing badly. He was missing goal sitters. एक मिस्टेक किया, हटा दिया कैप्टेंसी से. He is not captaincy material. You can see them. He is not a leader. Aubameyang, fuck off. Leader नहीं है तू. Martinelli has pounced on it. Smith Rowe जब बेंच से आता है वो सुपर सब चिचा रीटर उनका. He comes on 70-75, comes on, runs at players who are tired and scores. Saka. So that is where he had been brutal. Partey has not been injured since a long time. He dominates midfield. That was a signing I think he made last year, and it was perfect for him. So that is why you have to be brutal with these players. And नहीं है, तू नहीं है यार उसके लायक, कैप्टेंसी मटेरियल नहीं, बैठ जाके. Simple. That is how it should be. बैट तो ठीक है. I think they'll sell him off also. Aubameyang तो वैसे भी एटीट्यूड प्रॉब्लम था उसको, डॉर्टमंड भी तो था ब्रो. Sell him off. I don't care. जितना भी अच्छा हो तो यार, तू अच्छा नहीं खेल रहा है वैसे भी वो. He was missing sitters, which I think अपन तीनों में होता तो अपन तीनों मार देते जाके. एक दो तो मार ही देते हो. जो उसने मिस किया बहुत खराब मिस किया. And उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम था बे हमेशा. Plus attitude problems भी है. Plus you can see that leadership material जो नहीं है वो नहीं होना चाहिए. आर्सेनल, या मेरे को भी मतलब फीलिंग है, इफ नॉट फोर्थ, मतलब वो फोर्थ और फिफ्थ, मतलब यूरोपा तो क्रैक कर ही लेंगे, वो तो अभी ऑलरेडी है ही. बट यार उनका जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और जो अभी फाइट उन लोग पुट अप कर रहे हैं बड़े टीम्स के अगेंस्ट भी ना, बहुत इंप्रेसिव है. बट वही है, उनका वो स्विच कभी भी
चालू हो आर्सेनल सकता है है तो और फिर एक्साइट नहीं होने का। गोल डाल। हाँ पर वही। मुझे पता नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि एक बार जिसने सही बोला है उसने कि मतलब बिग टीम्स के सामने लोग नए विंस निकाल पा रहे हैं, बट वो लोग कंफर्टेबल है विंस नहीं निकालने में। मतलब वो लोग को पता है कि ये विंस नहीं आएंगे, इस पे सिर्फ अपना जान एकदम डालो, मोराल क्या डाउन तो ये नहीं। आएगा। हाँ, हाँ मोराल नहीं हो जाता मोरल एकदम। डाउन नहीं होता वो लोग का। एग्जैक्टली। और एंड वो लोग का आई भी थिंक वो उसका नेक्स्ट उसका पेप टॉक भी यही होता होगा, गो एंड प्ले, इफ यू विन दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच वी डिड टुडे, इफ यू लूज कम अगेन, वील हैव डिनर एंड फाइट अगेन टुमारो। पर द खाना ओनली खा के पॉजिटिव थिंग इज कि आर्टेटा के लिए नेक्स्ट स्टेप भी वो आएगा कि वो लोग ये गेम्स भी कन्वर्ट करना चालू करेंगे, व्हिच इज स्कैरी टू थिंक कि आर्सेनल यस। भी प्रोग्रेस कर करे। ही देते यार सिटी से अगेन, सिटी के अनलकी है वो लोग, और मतलब खुद आर्सेनल है इसलिए उन्होंने हगा, बट अनलकी भी है। वो रेड कार्ड और पेनल्टी अगर नहीं मिलता तो सिटी, आर्सेनल ले रही थी उसको, सिटी को पहले हाफ में। लिवरपूल को तो निकाल, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को तो पूरा फीलिंग आ रहा है लिवरपूल को हराएगी कैराबाओ में। देखते हैं और अभी क्या होता लिवरपूल के मतलब प्लेयर्स भी नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकता, और हाँ कैराबाओ आज तो पता नहीं इतना मिनामिनो और इंटरेस्टेड ऑक्सलेड क्लब। चेम्बरलेन और ओरिगी खेलेंगे मेरे हिसाब से तो। है। हाँ, क्योंकि आर्सेनल तो तो अपना पूरा स्ट्रेंथ खेलेगा क्योंकि वो लोग को पता है भाई ये सब कप्स में ही कुछ हो सकता है। यही एक कप का चांस है, और एक सिल्वरवेयर आ गया मतलब नेक्स्ट ईयर कोई ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। मोमेंटम एक भी साल है वो एक लोग के पास। सिल्वरवेयर से ही चीजें बढ़ती हैं, अपना वही प्रॉब्लम था लास्ट सीजन, अगर अपने ट्रॉफी जीत गए होते ना तो अपन का वो मोरल अच्छा हो जाता। पेनल्टी अगर चले गया होता ना वही तो मतलब क्या क्या बता, होता, क्या इट्स बता अब अगेन तक क्या ओले होता, होता। इट्स अब तक अगेंस्ट क्या ओले होता, होता। क्या हाँ। होता वो होता, मतलब अगेन इट्स ऑप्टिमिज्म एंड स्पेकुलेशन, बट दैट वुड हैव चेंज्ड एवरीथिंग अराउंड दैट। That would have saved him at least, मतलब पर हाँ, ठीक है, that's we can't discuss over that के लिए, वो व्हाट तो ऐसे इफ, तो इट्स ऑलवेज अ डिस्कस केस कर। ऑफ व्हाट इफ। हाँ, फिर वो तो एक व्हाट इफ का पूरा एपिसोड ही निकाल सकते हैं। व्हाट करेंगे इस इफ, बार, सीजन है अबे ये भी कर सकते इस बार हैं। करेंगे what if। रोनाल्डो का। व्हाट इफ। मत कर यार, ट्रिगर मत कर, अभी नींद नहीं आएगी मेरे को। नहीं मजाक करो। ठीक है, सो दैट वाज स्पर्स आर्सेनल। स्पर्स डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्स मैं नेक्स्ट अभी लेट्स, जो अपन यूजुअली हर वीक चकमा रखते हैं ना, आई थिंक चकमा ऑफ द होल 5-6 वीक शुड बी स्पर्स। आई टेल यू व्हाई। तो क्योंकि लिए अभी जैसे द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग के एक मैनेजर आने से ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, बट यू कांट से द सेम विद कॉन्टे बिकॉज़ ही हैज डन व्हाट वी वर सेइंग कि नहीं हो सकता है वो जो नहीं बट कहां थी नहीं इन ओवरनाइट टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंट। ओवरनाइट अबे जो बिल्डिंग मतलब देखो सिंपली बोलो तो जो लॉन्ग टर्म मैनेजर्स है, जो बिल्डिंग मैनेजर्स है, सभ्य मैनेजर्स है, उन लोग के साथ ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता है। बट जो मैनेजर्स को जो तुझे पता है आगे क्या करने वाले हैं, मतलब बेसिकली इफ यू आर अपॉइंटिंग अ मोरिनियो और अ कॉन्टे और एनी दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर, तो उनसे तो एक्सपेक्टेड है कि ओवरनाइट सक्सेस लाएंगे। वो लोग ट्यूशन ने भी ओवरनाइट सक्सेस लाया ना, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो लोग आएंगे, वो लोग वही करेंगे जो लोग हमेशा करते हैं। और बट मोरिनो तो अभी क्रेडिट है यार मोरिनो तो है भी he's नहीं अभी got गेम में, Spurs, बट कॉन्टे है, वो got आके Spurs वन निल विंस बहुत निकालना वो तो करता है कॉन्टे, वो क्लासिक कॉन्टे, एंड दैट इज नॉट इवन सेइंग बैड अबाउट कॉन्टे, वो करता है वो चीज। और इसीलिए लोग जब लोग बोलते हैं ना स्काई स्पोर्ट्स पे कि व्हाई डिड यूनाइटेड अपॉइंट कॉन्टे, आई एम ग्लैड कि कॉन्टे को तो अपॉइंट नहीं किया। प्रॉब्ली इन अनदर यूनिवर्स ना कॉन्टे वुड हैव गॉटन बेटर आउट ऑफ रोनाल्डो, क्योंकि वो ऐसे खिला सकता था। पर पता नहीं, मतलब नहीं भाई यूनाइटेड में नहीं चाहिए ये भी कॉन्टे। ये भी एक सही है कि ही कमांड्स दैट, मतलब वो के कोई बोलेगा कर। आई डोंट नो इफ रागनिक वुड टेल दैट, मतलब लगता है देख के पर्सनालिटी, बट वैसे जितना सुना था ना वो देख के तो थोड़ा सॉफ्ट ही लग रहा है, उतना लग नहीं रहा है, पर वो बोलता है अबे भाई, देख के ऐसा अगर रैंगनिक देख। सॉफ्टी। क्लॉप जैसा मैनेजर है हाँ तो पहली बात, क्लॉप जैसा मैनेजर तो ऐसे प्लेयर को खिलाएगा ही नहीं, रोनाल्डो ऐसे कोई टारगेट मैन को खिलाएगा ही नहीं नहीं अगर नहीं क्लॉप या पेप वही बोल जैसा रहा मैनेजर हूँ, है तो। लग नहीं रहा ऐसा कि दबा देगा। पर कॉन्टे मेरे को पता है कि भाई यही मतलब वो स्पर्स का एक बहुत अच्छा स्टैट था वो डिस्टेंस कवर्ड का, कि उसके आने के पहले 20th थे, अभी फर्स्ट है 5 गेम में या 6 गेम में, वो सब पे डंडा मार रहा है भाई, तू भाग सब भागेंगे। मेयोनीज पर नहीं मत भाग। खाएगा तू, केचप नहीं खाएगा तू नहीं गाय भाग। पर जब भाग। ये तो 1.5 साल चलेगा ये स्पोर्ट्स का हाँ, कॉन्टे, उसके बाद वो भी पर ठीक है स्पर्स के हिसाब से तो वो सही है एक तरीके एक से कि ट्रॉफी तो स्पर्स के डोंट लाना हिसाब चाहिए, से एफए उनको कप वो एफए कप औकात पे जीतना लेके चाहिए। आएगा, so अभी स्पर्स औकात लेस है, उनकी कुछ हाँ, औकात बना सकता है वो। एंड द बट मेरे थिंग को दैट यश इज सेइंग कि उन्होंने मैचेस भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिया नहीं है, लिवरपूल को बराबर से दिया था। बहुत बहुत भाई वो मैच स्पर्स जीतती तो मुझे कोई उसमें डाउट नहीं होता, वो लिवरपूल को दे रहे थे अच्छे से। फिर उसके बाद उन्होंने पैलेस को भी 3-0 दिया है भाई। हम्म वो अलग बात है कि हाँ उन्होंने साउथहैम्पटन से ड्रॉ कर लिया और वॉटफोर्ड को 1-0 ही दिया, बट आई थिंक दैट इज कॉन्टेंट, ही जस्ट वोंट कंसीड मच, बट ही इफ यू hasn't स्कोर lost in the दैट इज Premier गुड। League. He hasn't lost in the Premier League जब से आया है, either इफ यू स्कोर drawn दैट इज or गुड। win. हाँ, इफ यू तो स्कोर दैट इज गुड, इफ यू डोंट स्कोर डोंट कंसीड।
I बट don't know. कभी It's not कभी entertaining to watch, but it brings Spurs up the table, so it is good for their fans. I don't know how they tolerate football, but अपन, who am I to say again? इट ब्रिंग्स रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे. वही बोलेंगे अरे क्या तू बस फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ, वही बात हो गई ना. एट द एंड स्टैट्स पे आ जाएंगे सब लोग कि क्या हाउ डिड ही परफॉर्म, इज हाउ वेयर डिड ही एंड इन द टेबल. तो वही है बात. तो मतलब वो कर रहा है, वो अच्छे से काम अपना कैसे से निकाल रहा है. तो कैचअप निकाल दिया, प्लस बच्चों को चांस दे रहा है यार. हैरी विंग्स, ओलिवर स्किप गायब थे, अभी वो कमांड कर रहे हैं मिडफील्ड. केन भी फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा आ केन गया को है. भी ऐसा उसने बोला होगा, तू इधर ही रहने वाला है, खेल, टाइम दे कहीं नहीं जाने वाला है. गेम सोचा भी तो डंडा दूंगा. तो वही है देखते हैं. इंटरेस्टिंग होगा ब्रो. मेरे को तो लगता है फोर्थ का जो रेस होगा, आर्सेनल, स्पर्स, वेस्ट हैम का, तो देखेंगे क्या होता है. तो मेरे को तो पता नहीं क्या, मुझे फिर भी मुझे आर्सेनल बस अब होप है कि वो पेप को थोड़ा कुछ नहीं, 2-3 वीक बाद है अभी, तुरंत तो ट्यूशल पेप और से ट्यूशल है, उसमें भी कुछ हो जाए ना, सिटी थोड़ा मोमेंटम हिले ना, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा प्रीमियर लीग. बट वही है, बहुत सिटी मुश्किल तो है ब्रो. मैं आज तो है बोल ना, रहा हूँ लेजिट. चेल्सी मतलब स्पर्स है आज. आज ही है. कैरेबाओ कप में कैराबाओ. कैरेबाओ नहीं, मैं प्रीमियर लीग जो अभी नेक्स्ट वीक में आने वाला है ना, सिटी वर्सेस चेल्सी. तो देख, इन सब मैचेस में क्या है कि लीग में पेप विल विन बिकॉज ही नोज कि एक मैच में हगा तो कहाँ कवर कर सकता है. पेप ओनली लूजेस टू हिमसेल्फ इन नॉकआउट्स बिकॉज ही ट्राइज टू ओवरडू हिमसेल्फ. दैट इज व्हाई ही लॉस्ट टू टूचेल इन चैंपियंस लीग लास्ट फाइनल. मुझे आई डोंट, मैं ही अपने आप को हरा सकता हूँ. नहीं, वो सुल्तान है वो. तू हमेशा खुद से ही हार सकता है. सलमान खान की पिक्चर आ जाती है उसके सामने खुद की. लीग का भी कितना भी बोलो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, कितना भी बोलो, लेकिन एक चीज तो रहता है भैया, क्रंच पीरियड में जो निकालता है वो वही जीतता है लीग. मतलब हमेशा प्रूव हुआ है. वो ऐसी चीज है जो मतलब डिनाई नहीं कर सकता. लोग कितना भी और नया स्टैट्स निकाले, पर अनलेस देयर सर एलेक्स इन द लीग, उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि हम लोग ने ऑलमोस्ट 11 पॉइंट लीड को वो किया था. मतलब नहीं, हम लोग से 11 पॉइंट लीड लिया गया था, सिटी ने लिया था 2013 में, वो तो 2012 में अग्वेरो वाला सीजन में. पर जो भी है सिटी का, मुझे लीग तो भाई मेरे को नहीं लगता 3 हॉर्स रेस है. क्योंकि अगर कुछ कन्विंसिंग ऐसा होता ना कि ट्यूशल अच्छा परफॉर्म करके विंस नहीं निकाल पा रहा है, ऐसा है तो मैं थोड़ा तो बोलता भी भी, चल. बट ऐसा नहीं है कि कुछ कन्विंसिंगली कोई पीछे मेरे पड़ा हुआ है. हिसाब से तो लैडर इज नॉट क्राउडेड एट द टॉप. सिटी ऐसे घोड़े अपने यहाँ लगा के भाग जाना चाहिए अभी. उसको इधर तो कुछ नहीं लेके देखने जाएगी को. अभी, और क्या. they don't depend on anybody else, they are not bothered, they are अपने मजे में, तो वो निकलवा लेगा पेप. बट आई स्टिल होप कि वो एक ब्लिप आए ना, बिकॉज आई नो हाउ क्विकली वो इतना ये, हाँ इतना वो है ना परफेक्शनिस्ट टाइप, और इतना दिल से मतलब हर एक चीज में फुटबॉल सोचता है कि एक भी अगर लॉस आ गया ना उसका फट जाएगा तुरंत, और फिर अरे यार तो ये बदलू क्या गलत है, और थोड़ा फिर प्लेयर्स वो से भी खुद वो को हराएगा. So that is the only thing with पर him. तेरे को मैं एक बात बोलूं यश, हम लोग ऐसी सिचुएशन में कि हम लोग चेल्सी, सिटी और लिवरपूल में से तो क्या ही चुनेंगे, तू खुद बताना. चेल्सी वो नहीं भी जिता बात सकते, लिवरपूल तो जिता ही नहीं सकते, तो सिटी को ही बोल रहे हैं कि जीत जीत, तब तक थोड़ा 20 के पास आने तक जीतने बोलेंगे, तब फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा. चेल्सी, सिटी और लिवरपूल में तो चूजिंग लेसर ऑफ द 3 इविल्स वही होता है हमेशा. भाई बहुत सैड टाइम चालू हो जाते हैं यार हमारे. हम भी आर्सेनल ही बन गए एक किस्म से. लेट्स होप. अभी तुम्हारे पास तो है, बड़े भैया है, तो कुछ नहीं हो चाहिए सकता बड़े है. भैया. हम लोग को अपने ग्रीनवुड चाहिए था यार, 19 साल का, 20 साल का ग्रीनवुड. बड़े भाई आके यार. मुझे तो पसंद है, अभी भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा था. ग्रीनवुड यार अलग पसंद तो है ना टैलेंट है. यार, पर तुझे पता है जब किया ये कहाँ पे खेलता था, कहाँ पे खेल सकता है. ग्रीनवुड, रैशफोर्ड, सैंचो, क्या वो लोग बोलते थे ना ऐसे, वो जब मीम्स आ रहे थे ट्विटर पे कि कुछ डाला और मसाले, मतलब कुछ तो अंगार डाला और कुछ ऐसे वो हो गया, मतलब फायर आ गया पूरा. वो मीम्स देख के अब मुझे दुख होता है खाली. कि फायर कहाँ है भाई अब. बट ठीक है, let's see how it goes. I think we've covered mostly everything and every team. And FPL में स्पेशल शाउट आउट, सुयश इज डूइंग रियली वेल. थोड़ा ऊपर एकदम स्टेबल होके निकल गया है ऊपर. वी हैव टू प्ले कैच अप टू हिम नाउ. आयुष भाई मैं ऑलवेज कैच अप. मैं स्टार्टिंग में इतना जब ऊट पटांग कर देता हूँ कि मेरे को लगता है कि जहां मुझे कभी कभी मैंने नोटिस भी किया है, मेरे को कोई भी लीग में हाईएस्ट पॉइंट आते हैं, पर मैं कभी कभी जब एवरेज से भी 10 पॉइंट पीछे हो जाता ना, मेरे को लगता है कुछ नहीं हो सकता. मैंने 2-3 वीक थोड़ा यार थोड़ा ये करके वो वाला वीक खेल लिया मैंने. उसमें चेंज नहीं कर पाया था वो शादी की वजह से. वो वाला वीक जिसमें मेरे 6 ही प्लेयर खेले साले,
जो वीक में कम मैचेस थे तो वो सब थोड़ा, और फिर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 2-3 वीक में माइनस ले गया तो थोड़ा नीचे चलेगा, बट अब मैं थोड़ा वापस थोड़ा भी आ गया। ओके, स्टेबल खेल के बाद 10-10 पॉइंट कवर करके चलते हैं अरे पर ऊपर। तेरे पास अच्छा है ना, मेरे तो क्या है कि मैं जिसको लूंगा वो नहीं मारता है, तो मैंने फिर वो भी है, वो केस में अरे लेके हाँ, चलता तू हूँ अपने साथ। लेट्स एंड इट विद दिस, तू टिप दे दे कि तू किसको रखने वाला है, सो दैट वी वोंट कीप इट इन द टीम फॉर द नेक्स्ट वीक। तुझे पता नहीं 90+3 3 लोग इसलिए देखते होंगे कि तू तेरा तेरा प्रेडिक्शन के लिए तू एफपीएल में किसको रखा है। बट मैं तुझे बोलूं, जब वो था ना, जब फ्री हिट प्ले किया था मैंने, तो मेरा हर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा था, सिर्फ रीस जेम्स ने बर्बाद किया और मेसन माउंट ने बर्बाद किया, बाकी हर एक प्लेयर पर पॉइंट देके गया मेरे को ये अच्छा। तू माउंट पे नजर मत डाल यार, मैंने जो भाई 6 वीक माउंट से मुझे फक्कौली पॉइंट है, दे वो रहा पॉइंट मैंने है। हाँ, हटा दिया उसको, वो गोल नहीं निकाल दे मारा। निकाल दे बस, हाँ बस। वो मुझे 6 वीक से तो दे रहा है पॉइंट भाई मैंने लास्ट वीक केन में। रखा, केन गोल मार दिया वो मैच में, मैं सरप्राइज, मैंने कहा ये क्या हो रहा, चंबा। पासा पलट रहा है। नहीं नहीं, उसके बाद अगली वीक में मेरे को एवरेज से 6 पॉइंट कम आया, कुछ पासा नहीं पता। वैसे तेरे को बैलेंस पता आउट नहीं हो मेरे भी सक्सेस का यही राज है, मैं आयुष की टीम देखता रहता हूँ हर हफ्ता। सीक्रेट है, तूने गिव अवे कर दिया, अभी बहुत लोग सब टेबल पे ऊपर ही आएंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू एंड इट विद, एंड थोड़ा थोड़ा आज फायरी हीटेड डिबेट अपन क्लिकबेट डाल देंगे एंड। हीटेड डिबेट ने हीटेड रैंट, मैंने अपनी रैंट की है भाई, मेरे ऊपर भड़ास निकाला है खाली। पर कुछ नहीं भाई, तुम लोग इफ एनीबॉडी डज वॉच, 2-3 और लोग को बोल दो 35 से 38 व्यूज हो जाए। देखे थोड़ा और, एंड प्लीज या लाइक शेयर तो सब्सक्राइब इफ यू वांट, हाँ। एंड जो भी तुम लोग को कमेंट में डालो तो हम लोग भी थोड़ा बातें करें कमेंट में, हम लोग का कमेंट सेक्शन भी थोड़ा लाइव रहे। और बाकी हाँ, फुटबॉल फॉलो करते रहो, हमको बोलते रहो, थोड़ा क्वेश्चंस पूछो हम लोग को भी, हम लोग भी एंगेज करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे चैनल पे। हम लोग भी 6 महीने से सेम वीडियो करके बोर हो जाएंगे नहीं तो बाकी थोड़ा बहुत शेयर वेयर भी करो। मैं तो बोलता हूँ वीडियो अभी कैसा है ना, मैं ये आइडिया है सिर्फ, पता नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं। अभी अपन, अभी जैसे ना कितनी बार अभी मेरे को कुछ बोलना है बट मैं ना बता नहीं पाता, वो मेरे दिमाग में है वो पूरा सीक्वेंस ऑफ प्ले, और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कहाँ पे कौन रॉन्ग था, बट मैं ऐसे कैसे बताऊँ तुम लोगों को। तो वो कुछ ढूंढते हैं अपन कि वो वीडियो अपने को मिल जाए, अपन वीडियो प्ले कर, अपने को कौन ही कॉपीराइट करेगा, 30 सब्सक्राइबर में क्या घंटा कुछ कोई कॉपीराइट। तो अपन वैसा कुछ कर सकते हैं, वी कैन प्ले द वीडियो वेर इन ऑल थ्री ऑफ अस आर सीइंग, एंड देन वी कैन कमेंट के भाई इधर इसने ये किया था, इसने ये, और इसके वजह से ये है, तो मे बी थिंग्स विल गेट क्लियरर व्हाइल एक्सप्लेनिंग। ये बाकी ये रैंडम है, देख लो। कर सकते हैं एनालिसिस टाइप ना, बट वो स्क्रीन पे कैसे करते हैं एडिटिंग। चलो सब वो थोड़ा पड़ेगा। रिकॉर्डिंग ऑन है, पहले तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलो भाई। आयुष, हमारी एक पिरामिड स्कीम में तुम सरप्राइज कर, तुम एक को बताओगे वो 3 को बताएगा, तुम 3 को बताओ, तो ऐसे करते करते प्लीज हमें बढ़ाओ, लाइक शेयर ओके सब्सक्राइब, सलमान भाई। मे गॉड ब्लेस यू। 38 से 42 करो व्यूज। ठीक है, चलो देन until next week, let's see how it goes, hope you guys win and we have a happy discussion with Ayush, Ronaldo, मैं everything. ऑलवेज हैप्पी ब्रो। ठीक है, चलो बाय बॉयज। चलो बाय।